It is 5:30. We will get started. Whoever wants to join in later is welcome. आराम से बैठें. Sit in any comfortable meditative posture of your choice. वज्रासन, सुखासन, जो भी comfortable है उसमें आ जाएं. हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे इस तरह से on the knees और आंखें हल्के से बंद रखेंगे. We will start by scanning through the entire physical body. पैरों से शुरुआत करते हुए शरीर के एक एक अंग की ओर ध्यान लेकर जाएं. As you scan through your body, if you come across any tightness, any clenching in the body that is within your control, please release that. Take your awareness through the entire body from the feet up. Relax the spine, relax the shoulders. Make sure the neck is neutral. Pay close attention to your facial muscles. अगर माथे पर कोई शिकन हो, अगर आंखें कस के बंद की हुई हो, उन्हें भी ढीला करें. Keep your lips very lightly joined and your jaw relaxed. Now take your attention towards your thoughts. Whatever thoughts are occurring to you naturally at the moment, simply observe them like a spectator. Now increase your focus towards those thoughts that will help you in today's practice. The more you focus on the productive thoughts, the more the other unnecessary thoughts will start diminishing. Lastly, focus on your breath. Be aware of the natural flow of your breath at the moment. इस समय ना ही हमको सांसों को कंट्रोल करना है, ना ही उन्हें बदलना है. सिर्फ आती जाती सांसों की ओर ध्यान लगाकर रहना है. We will start with one Omkar chanting. For that, take a nice and deep breath. Sit in silence for a few seconds. Prepare yourself physically, mentally, emotionally for today's practice. एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें और जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें. Do not be in a hurry to open your eyes. Very lightly, very gently open. Okay, we will start with the warm up. बैठे रहें. पहले हम neck movements करेंगे, वो हम बैठ के आराम से कर सकते हैं. Make sure spine is at natural curvature. Don't be bending forward or backwards. Backwards के chances कम है, forward leaning का chance होता है. पहले सांस भर लें. सांस छोड़ते हुए गर्दन को पूरा लेफ्ट की ओर टर्न करें. Try bringing your chin parallel to the left shoulder if possible. Stay there. Normal breathing. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. पूरा दूसरी तरफ लेकर जाएं. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change again. Stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change.
1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale and center. Exhale and change. 1, 2, 3, 4, 5. Center and downwards. Chin down, spine tall. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly backwards. धीरे धीरे पूरा पीछे लेके जाएं. Keep your lips together and stay there. 1, 2, 3, 4, 5. Downwards. धीरे धीरे फिर से पूरा नीचे. पीठ सीधी. 1, 2, 3, 4, 5. Backwards. पूरा पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. Downwards. पूरा नीचे. 1, 2, 3, 4, 5. Backwards. पूरा पीछे. 1, 2, 3, 4, 5. अब slowly down और full neck rotations. चिन से घुमाते हुए एक शोल्डर के पास. पूरा रोटेट करके चिन दूसरे शोल्डर के पास. Back to center and repeat. 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. चिन से घुमाना है, गाल से नहीं घुमाना है. ओके, चिन से घुमाइए. 3 बार कंप्लीट करिए. 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज. आपकी चिन एक शोल्डर पे आनी चाहिए, फिर पूरा घूम के चिन दूसरे शोल्डर पे आनी चाहिए. गाल नहीं, चिन. Three clockwise, 3 anti-clockwise. Good. सबका हो जाए, then I'll take you through the next one. चलिए अगला वाला देख लीजिए. पहले देख लीजिए, उसके बाद में यू कैन स्टैंड अप. हम वेस्ट और आर्म्स दोनों के लिए साथ में वार्म अप करेंगे. टुडे इज अ क्रियास सीक्वेंस. मतलब हम कहीं पर भी बहुत ज्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे, हम मूव करते रहेंगे. ओके, द मैक्सिमम वी विल होल्ड इज 5 सेकेंड्स. पहले देख लीजिए, उसके बाद में करिए. पैरों में डिस्टेंस करेंगे. कम से कम 2.5 फीट का फासला आप अपने पैरों के बीच में रखेंगे. हाथ जो है उनको आप इस तरह शोल्डर लेवल पे रखेंगे. आपके हाथ शोल्डर लेवल पर ही रहेंगे. अब मैं ट्विस्ट करूंगी, मेरे हाथ इसीलिए घूमेंगे क्योंकि कमर घूमेंगी. अदरवाइज आपको हाथ का एंगल चेंज नहीं करना है. पहले सांस भरेंगे. सांस छोड़ते हुए आई एम ट्विस्टिंग टू माय लेफ्ट. माय हैंड्स आर स्टिल एट शोल्डर लेवल. द हैंड इज नॉट मूविंग. द हैंड इज ओनली मूविंग बिकॉज द वेस्ट इज ट्विस्टिंग. पीछे वाले हाथ को देखना है. ये वाला ऑपोजिट वाला पैर ऐसे बेंड नहीं होना चाहिए, उसको आपको पुश करके रखना है, हील को नीचे प्रेस करके. 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे. इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे. एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे. पीछे वाले हाथ को देखेंगे. 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग में होल्ड करेंगे, फिर चेंज करेंगे. ओके, आ जाइए. पैरों में डिस्टेंस करिए. कम से कम 2.5 फीट का फासला. अगर आपके लिए पॉसिबल है, जैसे मेरे डिवाइस वर्टिकल है,
अगर आपके लिए पॉसिबल है, इफ यू आर यूजिंग अ फोन और अ टैबलेट, तो उसको वर्टिकल कर दीजिए इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, तो मुझे आपकी पूरी बॉडी दिखेगी सर से लेके पैर तक. इफ दैट इज डूएबल, प्लीज डू दैट. पैर अपने कम से कम आप 2.5 फीट अपार्ट रखिए. पैर के पंजे सीधे रखिए. ओके, पैर ऐसे वी शेप में नहीं होने चाहिए. पैर के पंजे आपको सीधे रखने हैं. और फिर आपको दोनों हाथ, प्रियंका जी मुझे सिर्फ आपकी जमीन दिख रही है, पेट के ऊपर का कुछ भी नहीं दिख रहा है. दैट इज द चैलेंज, यू नो, वो थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा. दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे रखिए, लंबा करके रखिए हाथों को, कोई खींच रहा है दोनों तरफ से वैसे. पहले पूरी सांस भरिए. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट की ओर टर्न करिए, लेफ्ट की ओर. पीछे वाले हाथ को देखना है. दोनों घुटने सीधे, राइट पैर स्पेशली नीचे पुश किया हुआ. लेफ्ट की ओर घूमना है, राइट की ओर नहीं. 1 2 3 4 5. Inhale and return to center. Exhale and immediately rotate to your right side. बीच में ब्रेक मत करिए. ओके, बीच में ठहरना नहीं है हमको. 1, पीछे वाले हाथ को देखिए. 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2. कमर को पूरा निचोड़िए, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे कमर को निचोड़िए. 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. और 2 reps करना है. 1 2, पीछे देखिए. 3, पीछे वाले हाथ को देखिए. 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2, normal breathing. 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. Last repetition each side. 1 2 3 4 5. Inhale and center. Exhale and change. 1 2 3 4 5. Back to center. धीरे से हाथ नीचे and relax. ओके, अगला वाला देखिए पहले, उसके बाद में करिए. अगले वाले में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ बैलेंस इन्वॉल्व. तो अगर आप चाहें, आप एक हाथ किसी सरफेस पे रख सकते हैं, वॉल पे या फर्नीचर पे, पर ये हाथ सीधा होना चाहिए. ये हाथ ऐसे यहाँ से भी फोल्डेड नहीं होना चाहिए और ये नीचे नहीं होना चाहिए. व्हाटएवर सपोर्ट यू आर यूजिंग, इट हैज टू बी आर्म लेंथ डिस्टेंस. ओके, एंड एट द शोल्डर लेवल. ऐसे नीचे कहीं आपको सपोर्ट नहीं लेना है. अगर आपको सपोर्ट नहीं लेना है तो आप दोनों हाथ कमर पे रखेंगे. लाइक आई सेड, देयर इज बैलेंस इन्वॉल्व. तो चाहिए तो सपोर्ट ले सकते हैं. कीप योर गेज फिक्स्ड एट वन पॉइंट. किसी भी एक पॉइंट पे अपनी नजर टिका के रखिए. स्क्रीन पे कभी भी फोकस मत करिए, बिकॉज मैं मूव करूंगी, मैं बात करूंगी, आपका अटेंशन डाइवर्ट होगा. तो किसी इमोबाइल पॉइंट पे आप फोकस करेंगे. ध्यान से देखिए आपको क्या करना है. पहले आपको एक पैर को इस तरह से फोल्ड करना है. ये राइट एंगल पे उठाया है, हिप से नी स्ट्रेट लाइन में है. पैर का पंजा देखिए वो फ्लेक्स है. ये पैर ऐसे नहीं रखना है, ये पैर ऐसे रखना है, उल्टे एल शेप में. ओके, तो पहले पैर को बेंड करेंगे, उसी पैर को स्ट्रेच करेंगे. लुक एट द टोज, दे आर फ्लेक्स्ड, दे हैव टू बी फ्लेक्स्ड ऑल थ्रू आउट. फिर से इस पैर को बेंड करेंगे, फिर इसको नीचे लेकर आएंगे. जब आप एक पैर बेंड करते हैं, दूसरा घुटना एकदम सीधा होना चाहिए. जब आप पैर सीधा करते हैं तो ऐसे हिप से आगे नहीं जाना है, आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी. ओके, अगेन यू विल बेंड एंड ब्रिंग दिस डाउन. अब फिर से देखिए, आई विल शो यू 2-3 टाइम्स. कीप योर गेज लॉक्ड एट वन पॉइंट. I will give you instructions when I'm close to you. Bend, stretch, bend, down. Okay? Bend, stretch, bend, down. एक बार और देखिए. Bend, stretch, bend, down. Bend, stretch,
बेंड डाउन। ठीक है, मुझे फेस करके खड़े मत रहिए, किसी और तरफ आप फेस करिए। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो प्लीज यूज करिए, वरना दोनों हाथ कमर पे रखिए। ओके, आई विल काउंट ऑल्सो एंड आई विल गिव यू इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो। वी विल ऑल स्टार्ट विद द लेफ्ट लेग। लेफ्ट नी को बेंड करें, फिर स्ट्रेच करें उसी पैर को, फिर से बेंड करें, अब नीचे लेकर आए। नाउ राइट, बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। लेफ्ट अगेन, बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। राइट, बेंड, हिप लेवल तक उठाइए घुटने को, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। लेफ्ट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। दूसरा घुटना टाइट रखिए, राइट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। लेफ्ट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। राइट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। लेफ्ट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। राइट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। तन्वी जी दूसरा घुटना सीधा रहेगा, लेफ्ट बेंड, स्ट्रेच, एक ही पैर जमीन पे है, वो लॉक्ड चाहिए, बेंड, डाउन। राइट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। लेफ्ट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, डाउन। राइट बेंड, स्ट्रेच, बेंड, down. Left bend, stretch, bend, down. Right bend, stretch, bend, down. Last two. Left bend, stretch, bend, down. Right bend, stretch, bend, down. Last one. Left bend, stretch, bend, down. Right bend, stretch, bend, down and relax. अगला वाला देखिए, उसके बाद में करिए। फिर से पैरों में डिस्टेंस करेंगे, कम से कम 2.5 फीट का फासला आपको रखना है दोनों पैरों के बीच में। पैर के पंजे सीधे रखिए, ओके, ऐसे वी शेप में मत रखिए। पैर के पंजे, आपके टोस और आपकी हील्स ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ओके। तभी आपके एंकल्स, आपके पैरों के साइड के मसल्स एक्टिव रहेंगे और वो भी यूज हो जाएंगे जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, वी आर गोइंग टू डू लैटरल बेंड्स और साइड बेंड्स नाउ। ध्यान से देखिए, उसके बाद में करिए। मैं बाद में आपको इंस्ट्रक्ट करूंगी, अभी आप सिर्फ देखिए। एक हाथ को हम थाई के पीछे ले जाएंगे, हम नीज को एकदम लॉक रखेंगे, नी बिल्कुल बेंड नहीं करना है। एक हाथ को थाई के पीछे लेंगे, दूसरा हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। जब इस हाथ को ऊपर उठाते हैं तो ये पूरा साइड हम लंबा करेंगे, ऊपर की तरफ इसको स्ट्रेच करेंगे, हाथ को कान से चिपका देंगे और दूसरा हाथ जो थाई के पीछे है उसको नीचे नीचे स्लाइड करते हुए इस तरह साइड बेंड करेंगे। ओके, आपको फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है, आपका फेस, चेस्ट और नेवल ऐसे फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। ऊपर वाला हाथ सीधा। हम सिर्फ 3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 3 सेकेंड्स के बाद ऊपर आएंगे, हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ लैटरल बेंड करेंगे। 3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर ऊपर आएंगे, हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे, फिर से दूसरी तरफ जाएंगे। ओके, आ जाइए। पैरों में कम से कम 2.5 फीट का फासला रखिए, ओके, मिनिमम। पैर के पंजे सीधे रखिए, ऐसे वी शेप में नहीं, एकदम सीधे, टोज एंड हील्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए, ओके। अपना ध्यान नीज के पास ले जाइए, नी के ऊपर जो मसल होता है उसको आपको टाइट करना है। टू पुट यूज अ सिंपलर वर्ड, उसको टाइट करिए, वो मसल थोड़ा ऊपर उठेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। अब सब लोग लेफ्ट हाथ लेफ्ट थाई के पीछे रखिए, वो हाथ आपका पैर के पीछे ही रहेगा नीचे आते हुए। राइट हाथ को सांस भरते हुए ऊपर उठाइए, लंबा करिए ये साइड पूरा, हाथ को कान से चिपका दीजिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए।
आपका फेस, आपका चेस्ट, आपका नेवल कैमरा को फेस करना चाहिए. स्टे देयर. 1, घुटने सीधे. 2, 3, स्लोली इनहेल एंड कम अप, मेंटेनिंग द लेंथ ऑफ द टॉर्सो. हाथों की पोजीशन चेंज करिए और एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ नीचे जाइए. कीप स्लाइडिंग योर राइट हैंड डाउनवर्ड्स. नीज फर्म. ऊपर वाला हाथ सीधा रहेगा, ऐसे लटका नहीं रहेगा, सीधा रखिए उसको. 1, 2, 3, इनहेल एंड अप, एक्सहेल एंड चेंज. फिर से दूसरी तरफ जाइए. लंबा करिए टॉर्सो को, साइड्स में फील करिए एंड स्टे देयर. 1, कीप स्लाइडिंग द अदर हैंड डाउन. यू मे जस्ट बी सरप्राइज्ड कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं. 2, 3, inhale and come up, change the position of hands, exhale and go down on the other side. ऊपर वाला हाथ सीधा रहेगा कोहनी से, दोनों हाथ सीधे रहेंगे. 1, 2, 3, inhale and up, exhale and change. I am counting, आप करते जाइए. जाइए नीचे. knees firm. कांधा पीछे नहीं जाना चाहिए, चेस्ट मेरी तरफ फेस करेगा. 1, वेरी गुड तन्वी जी. 2, गुड अवेयरनेस. 3, ऊपर वाला हाथ फोल्ड नहीं करना है, सीधा रखना है. इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. लंबा करिए पूरे स्पाइन को साइड से और फिर नीचे जाइए. कोई आपका हाथ खींच रहा है, ऊपर वाला हाथ, वैसे पूरा लंबा करिए. 1, 2, 3, इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. जाइए साइड में. जैसे एक हाथ नीचे लाते हैं वैसे दूसरे हाथ को ऊपर लाइए और फ्लो में करते जाइए. 1, 2, 3, इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. मैक्सिमम नीचे जाइए. 1, 2, 3, इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. जाइए पूरा नीचे. 1, 2, 3, inhale and come up, exhale and change. ऊपर वाला हाथ सीधा. 1, 2, 3, inhale and come up, exhale and change. Keep going, I'm counting. 1, दोनों हाथ सीधे. 2, 3, inhale and come up, exhale and change. 1, हाथ सीधा रखने का क्या लेंगे. 2, 3, inhale and come up, exhale and change. जाइए मैक्सिमम नीचे. कोई आपका हाथ खींच रहा है वैसे उसको पूरा सीधा रखिए. 1, 2, 3, inhale and come up. वेरी गुड, बहुत अच्छा हो रहा है सबका. एक्सहेल एंड चेंज. दैट इज द एडवांटेज ऑफ मोर रेपिटेशंस. आपके मसल्स की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. 1, 2, 3, लास्ट 2 ईच साइड. इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. 1, वेरी गुड. 2, नीचे वाले हाथ को और नीचे जाने दीजिए. 3, वेरी गुड. इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. घुटने सीधे. 1, हाथ भी सीधे. 2, 3, लास्ट टाइम. इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. दोनों हाथ सीधे. 1, 2, 3, लास्ट टाइम ऑन द अदर साइड. इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड चेंज. 1, 2, 3, इनहेल एंड कम अप, धीरे से हाथ नीचे एंड रिलैक्स. हो गया. ओके, कुछ देर खड़े रहिए. ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए क्योंकि हम ज्यादा रेपिटेशंस कर रहे हैं, हम क्विकली चेंज कर रहे हैं. थोड़ी सांस खुलेगी, वो नेचुरल है. थोड़ा उसको नॉर्मल होने दीजिए, फिर मैं आपको अगला वाला दिखाती हूँ. ओके, अगर आपको पानी पीना हो, जब सांस तेज हो तब कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए. तो इफ यू फील द अर्ज टू ड्रिंक वाटर, फर्स्ट लेट योर ब्रेथ काम डाउन. देन इफ यू वांट बैठ के थोड़ा पानी पीना, बहुत ज्यादा मत पीना. पहले सांस को नॉर्मल होने दे. कुछ देर आप आंखें बंद करके भी, देयर इज जैसे अष्टांग योग बोलते हैं ना, तो अष्टांग योग के 8 हिस्से होते हैं, 8 अंग होते हैं.
उसमें से पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन। तो एक नियम है कॉल्ड स्वाध्याय और सेल्फ स्टडी। आंखें बंद करते हैं जब हम, तो एक सेंसरी इनपुट हमारा कम हो जाता है ना, क्योंकि विजुअल सेंस हमारा गायब हो जाता है जब आंखें बंद हो जाती है। सो योर अटेंशन गोज इनवर्ड्स। सो दैट इज व्हाट स्वाध्याय इज। स्वाध्याय मीन्स सेल्फ स्टडी। जब भी आप ब्रेक ले रहे हो इन द मिडल ऑफ योर योग अभ्यास और योगा प्रैक्टिस, आंखें बंद करके जस्ट फील द चेंज इनसाइड यू। ओके, अभी आपने क्रिया की है, इतनी मूवमेंट की है, आपके बॉडी में कुछ चेंज आया होगा। सो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम फॉर स्वाध्याय। फिर आपकी सांस भी नॉर्मल हो जाएगी तब तक, एंड आई विल शो यू द नेक्स्ट वन। चलिए अगला वाला देखिए। अगला वाला मैं आपको साइडवेज दिखाऊंगी। आपके पैर मैट पे होने चाहिए, तो मैं अपनी मैट का डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ। आप भी अगर पहले आप देख लीजिए फिर आप डिसाइड करिए, पर पैर आपके जमीन पे नहीं, आपके पैर मैट पे होने चाहिए। ओके, फिर से हम पैरों में कम से कम 2.5 फीट का फासला करेंगे। ऑलराइट, पैर के पंजे सीधे रखेंगे, नीज को हम फर्म रखेंगे। ध्यान से देखिए, मैं आपको फिर से इंस्ट्रक्ट करूंगी, पहले आप देख लीजिए। सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे साइड से, स्पाइन को पूरा लंबा करेंगे, हाथों को कानों से चिपका के रखेंगे, हिप को पीछे पुश करेंगे, चेस्ट आउट। ऐसे आगे नहीं जाना है। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा गोल हो गया है। पीठ को हमको गोल नहीं करना है, हमको चेस्ट को आगे रखना है और कान को हाथों को कानों के पास रखना है। स्पाइन को लंबा रखते हुए हमको आगे जाके हल्का सा जमीन को टैप करना है। आपको नीचे पूरा पंजा नहीं लगाना है, ये नहीं करना है आपको हल्का सा उंगलियों से टच करना है आगे, फिर दोनों पैरों के बीच में से पीछे टच करना है हल्का सा, फिर एंकल्स के पास टच करना है। फिर आप अपने अंगूठे लोअर बैक पे लाएंगे, एल्बोस को एक दूसरे की तरफ पुश करेंगे और बैकवर्ड बेंड करेंगे। फिर आप धीरे से सीधे होंगे, क्योंकि आप पीछे गए हैं। पहले आप नीचे थे, फिर आप पीछे गए, तो जो ब्लड फ्लो है पहले सर में आया, फिर वो उतरा, फिर आप पीछे गए। तो ये आपको स्लो करना है। अगर आप बहुत फास्ट करेंगे तो आपको चक्कर आ सकता है। ठीक है, मैं आपको 2-3 करके दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगी। पैर आपके 2.5 फीट अपार्ट रहेंगे मिनिमम। आपके पैर के पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे, आपके घुटने फर्म रहेंगे, घुटनों को मोड़ना नहीं है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हाथों को साइड से उठाएंगे, सांस भरते हुए पूरा लंबा करेंगे, स्पाइन को हाथों को कानों से चिपका देंगे, हिप को हल्का सा पीछे पुश करते हुए, स्पाइन को लंबा रखते हुए, हाथ कानों से लगे हुए आगे टैप करेंगे, फिर पीछे टैप करेंगे, फिर एंकल्स के पास टच करेंगे, अंगूठे लगाएंगे लोअर बैक पे और एल्बोस भी एक दूसरे की तरफ पुश करते हुए बैकवर्ड। धीरे से सीधा होंगे, फिर से हाथ ऊपर कानों से लगे हुए, हिप पीछे फॉरवर्ड बेंड, gently tap the floor in the front, then backwards, then touch near the ankles, then your thumbs on the lower back, elbows push together towards each other. ओके, ये आपको 10 करने, जो मैं काउंट करूंगी, और आपको स्लो करने, वरना आपको चक्कर आ सकता है। ओके, चलिए पैरों में डिस्टेंस करिए, कम से कम 2.5 फीट का फासला। मेक श्योर योर फीट आर ऑन द मैट, नॉट ऑन द बेयर फ्लोर। पैर के पंजे सीधे, टोज एंड हील्स एकदम सीधी लाइन में, नीज फर्म। ओके, नीज को मोड़ने का कोई काम नहीं है, तो नहीं करना है। हाथों को साइड में लीजिए और सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, कानों से लगाइए, लंबा करिए पूरे स्पाइन को। अभी हिप को पीछे पुश करिए, सांस छोड़ते छोड़ते आगे जाइए, हाथ कान से चिपके हुए। लेंथन द टॉर्सो, हल्का सा जमीन को छूना है उंगलियों से, अगर हाथ पहुंचता है तो, नहीं पहुंचता है कोई बात नहीं। आगे टैप करो, पीछे टैप करो, दोनों हाथ के बीच, पैर के बीच में से हाथ पीछे ले जाओ, फिर एंकल्स को टच करिए अपने, और फिर अंगूठे को लोअर बैक पे लाइए और धीरे से ऊपर आइए। एल्बोस को एक दूसरे की तरफ पुश करिए, चेस्ट एक्सपांड करिए, जितना पीछे मुड़ सकते हैं मुड़िए स्लोली। अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर कमर पे। कुछ लोगों की उंगलियां अंदर है और अंगूठा बाहर है, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स।
फिर से धीरे से सीधे हो जाइए, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, लंबा करिए, हिप को पीछे पुश करिए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। धीरे धीरे इज द कीवर्ड। हल्के से आगे टैप करेंगे जमीन पे, फिर दोनों पैर के बीच में से हाथ पीछे ले जाके टैप करेंगे, फिर एंकल्स को टच करेंगे। अब अंगूठे को लाइए लोअर बैक पे, अंगूठा, उंगलियां नहीं, अंगूठा। प्रियंका जी पीछे, पीठ पे, कमर पे के साइड पे नहीं, पीछे। दो लोग उल्टा कर रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेटली आई कांट डू बियॉन्ड जस्ट सेइंग इट। चलिए फिर से कंटिन्यू करिए, सीधे हो जाइए बैक से, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, लंबा करिए, हिप को पीछे पुश करिए, एक्सहेल करते हुए गो फॉरवर्ड, टैप द फ्लोर इन द फ्रंट, spine tall, tap the floor in the front, then backwards, then touch your ankles, get your thumbs on the lower back, slowly ऊपर आके elbows एक दूसरे की तरफ push करके backward bend करिए। धीरे से सीधे हो जाइए, inhale and hands up again, lengthen the spine, hip को पीछे push करिए, forward bend करिए, स्पाइन को लंबा रखते हुए जाइए, गोल करके नहीं जाना है स्पाइन से श्वेता जी। टैप द फ्लोर इन द फ्रंट, देन बैक, फिर एंकल्स को टच करिए, अंगूठे को लोअर बैक पे लगाइए, धीरे से ऊपर आइए, एल्बोज एक दूसरे की तरफ पुश करिए ताकि चेस्ट ओपन हो, और बैकवर्ड बेंड करिए। स्टार्ट अगेन। धीरे से पीठ सीधी, इनहेल एंड हैंड्स अप, हिप को पीछे पुश करिए, हाथ कानों से चिपके हुए, एक्सहेल करते हुए स्लोली आगे जाइए। लेंथन द स्पाइन, टैप द फ्लोर इन द फ्रंट, then backwards, then touch the ankles, thumbs on the lower back और backward bend। thumbs on the lower back बोल रही हूं तो उंगलियां क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ अंगूठा लगाइए ना, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर। उंगलियां बाहर नहीं है दो लोगों की, for some reason। Anyway, inhale and up, straighten the back again, lengthen the torso, हाथ ऊपर, हिप को पीछे पुश करिए, एक्सहेल करते हुए पूरा लंबा करिए स्पाइन को, आगे जाइए। Tap the floor in the front, then backwards, then touch your ankles, thumbs on the lower back, slowly come up and do a backward bend। Very good। Inhale and come up, lengthen the spine again, लंबा करिए पूरा, हिप को पीछे पुश करिए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे आगे जाइए। आपको लगना चाहिए कि पूरी बॉडी आपकी पार्टिसिपेट कर रही है। आगे टैप करिए, फिर पीछे टैप करिए, फिर एंकल्स को तरफ टच करिए, थम्स ऑन द लोअर बैक, फिंगर्स नियर द वेस्ट एंड डू अ बैकवर्ड बेंड। फिंगर्स को हिप्स के पास नहीं रखना है, कमर के पास साइड में रखना है। मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं वैसे आपके हाथ दिखने चाहिए। स्टार्ट अगेन। इनहेल एंड अप, हाथों को लंबा करिए ऊपर, हिप को पीछे लीजिए, एक्सहेल करते हुए आगे जाइए। लेंथन द स्पाइन फॉरवर्ड, टैप इन द फ्रंट, देन बैकवर्ड्स, टच द एंकल्स, थम्स ऑन द लोअर बैक, फिंगर्स नियर द वेस्ट। जैसे मेरे हाथ दिख रहे हैं वैसे आपके हाथ के पंजे दिखने चाहिए। अब पीछे मुड़िए। Inhale and come up again slowly. Last 3 reps. Lengthen the hands upwards. Spine को पूरा लंबा करिए, हिप को पीछे पुश करिए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड में आइए। Lengthen the spine. Tap the floor in the front, then backwards. Touch the ankles. Come up, do a backward bend. Last 2. Inhale and hands up. लंबा करिए पूरे स्पाइन को, हिप को पीछे पुश करिए, फॉरवर्ड बेंडिंग में जाइए, स्पाइन को लंबा रखते हुए। टैप द फ्लोर इन द फ्रंट, देन बैकवर्ड्स, देन टच द एंकल्स, फिर हाथों को लाइए लोअर बैक पे और बैकवर्ड बेंड करिए। इनहेल एंड कम अप, लेंथन द स्पाइन। लास्ट टाइम।
स्ट्रेच फॉरवर्ड, पूरा लंबा करिए स्पाइन को, आगे टैप करिए, फिर पीछे टैप करिए, एंकल्स को टच करिए और लास्ट में लोअर बैक पे अंगूठा रखते हुए बैकवर्ड बेंड करिए। जेंटली रिलीज एंड रिलैक्स। आराम से खड़े रहें, फिर से आंखें बंद करके खड़े रहें। अलाउ योर ब्रेथ टू रिटर्न टू नॉर्मल। चलिए, बाकी क्रियाओं के लिए बैठ जाएं और अपने मैट का डायरेक्शन भी चेंज कर लें। जैसे आपको मेरी पूरी मैट दिख रही है एंड देयरफॉर यू कैन सी माय एंटायर बॉडी, प्रेफरेबली मुझे भी आपकी पूरी मैट दिखनी चाहिए। ओके, तो एक बार अपना स्क्रीन भी चेक करिए कि आप कैसे दिख रहे हैं अक्रॉस द स्क्रीन, यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू डू दैट। ओके, पहले हम मार्जर क्रिया करेंगे। इट इज अ वेरी सिंपल बट वेरी इफेक्टिव क्रिया। इट्स कॉल्ड कैट एंड काउ इन इंग्लिश। As such knees पे प्रेशर नहीं आता, इट इज जस्ट माय प्रेफरेंस टू यूज एक्स्ट्रा कुशनिंग, सो आई डू दैट। आपको करना हो तो आप भी कर सकते हैं। मार्जर के बेस के लिए पहले एल्बोस को नीज से चिपकाएंगे। पहले पूरा देख लीजिए, फिर मैं आपको फिर से दिखाऊंगी। एल्बोस को नीज से चिपकाएंगे और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है वहां पे आप अपने पंजे के बेस को लेकर आए। इस तरह से इसीलिए मेजर करते हैं ताकि आपका शोल्डर और रिस्ट और आपका नी और हिप स्ट्रेट लाइन में आए। अंदाजे से करेंगे तो शायद स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। हाथों की उंगलियों को आप इस तरह से फैला के जमीन पे रखेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर विथ अपार्ट, आपके नीज हिप विथ अपार्ट, पीछे से टोज जॉइंट रहेंगे, बड़े वाले टोज। अब देख लीजिए एक्चुअल क्रिया। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेके जाएंगे, पेट को पूरा नीचे दबाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन अंदर, पीठ को पूरा गोल कर देंगे। सांस छोड़ते हुए नाभि को, नेवल को पूरा अंदर खींचेंगे। फिर से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट को नीचे पुश करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएंगे, नाभि को पूरा लॉक करेंगे। ये आपको 15 बार करना है, स्लो करना है, कहीं भी झटका नहीं लगना चाहिए। 15 हो जाने के बाद में आप हिप्स को हील्स के पास ले जाएंगे और चाइल्ड पोज में रेस्ट करेंगे। चलिए आ जाइए बेस पोज के लिए। सबसे पहले एल्बोस को नीज से चिपकाएं। ओके, कोहनी को अपने घुटनों से चिपकाएं और जहां आपकी सबसे लंबी उंगली खत्म होती है, पाम के बेस को आप वहां पर लेकर आए। ओके, दैट इज हाउ यू get into the base pose for this kriya. I'll come close and check and then you may start. Yes, हाथों की उंगलियों को स्प्रेड आउट करके रखिए। सब उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। प्रांजल जी, आपका ना मुझे बॉडी दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ पीठ दिख रही है। थोड़ा कैमरा को जमीन की तरफ टिल्ट करिए और चाहिए तो कैमरा से थोड़े दूर चले जाइए। हाँ, कैमरा से थोड़े दूर चले जाइए। बहुत क्लोज है अभी भी आप, तो आपकी बॉडी कट रही है फ्रेम में से। एक बार देखिए कि आप कैसे दिख रहे हैं। आप अपना स्क्रीन देखिए तो आपको आइडिया आएगा। ओके, चलिए, द रेस्ट ऑफ द पीपल कैन स्टार्ट। सांस भरते हुए गर्दन धीरे से पीछे लीजिए और पेट को नीचे की ओर दबाइए। सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन को अंदर लीजिए। गुड प्रांजल जी, नाउ आई कैन सी यू क्लियरली। सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाइए। सांस बाहर करके नाभि को अंदर खींचिए। कंटिन्यू। इनहेल एंड चेंज इनटू कैट पोज। एक्सहेल एंड चेंज इनटू काउ पोज। पूरा ऊपर। बहुत अच्छे प्रियंका जी।
Inhale and cat pose. Exhale and cow pose. 3 हो गए, आपको और 12 करने हैं। अपने हिसाब से करिए, अपने लिए काउंट भी करिए। पूरी सांस भरते हुए कैट पोज में चेंज करिए। पूरी सांस भरनी है धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते फिर से चेंज करिए। ब्रेथ का कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। कंटिन्यू, आई एम ऑब्जर्विंग। किसी को करेक्ट करना हुआ तो मैं करूंगी। तन्वी जी, पैर के बड़े वाले टोज ज्वाइन कर दीजिए। यस, एंड कंटिन्यू। टोस सुले हुए रहेंगे, टोस को खड़ा नहीं रखना है, टोस को सुला के रखना है। एल्बोज सीधे ही रहेंगे, एल्बोज को हमको बेंड नहीं करना है। प्लीज कंटिन्यू एंड कंप्लीट 15। स्लो करें, डीप ब्रीदिंग के साथ करें। प्रांजल जी, हाथ थोड़े पीछे लाइए, थोड़ा पैरों के पास लाइए। हाँ, अभी कंटिन्यू करिए। ये ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं लाना था। हाँ, अभी कंटिन्यू करिए। वेरी गुड, गुड श्वेता जी। पूरा स्पाइन आपको फील होना चाहिए कि स्पाइन का एक एक वर्टिब्रा आपका जो है वो मूव कर रहा है। कहीं पर भी जर्क ना लगे, झटका ना लगे, उसका ध्यान रहे। वेरी गुड तन्वी जी। पीठ को सबको मैक्सिमम नीचे भी पुश करना है और फिर मैक्सिमम ऊपर भी पुश करना है, इसीलिए उसको कैट एंड काउ पोज बोलते हैं। पंद्रह हो जाए तो चाइल्ड पोज में आप रेस्ट करेंगे। हिप्स ऑन द हील्स, हाथ सीधे। हिप्स का हील्स के पास रहना जरूरी है, सर का जमीन पे लगना जरूरी नहीं होता है चाइल्ड पोज में, उस बात का ध्यान रहे। धीरे से ऊपर आ जाएं, आराम से ऊपर आके बैठ जाएं। एंड लुक एट द नेक्स्ट वन। ओके, अगला वाला जो है इसको चक्की क्रिया बोलते हैं। बिफोर वी डू चक्की क्रिया, वी विल जस्ट प्रिपेयर द लेग्स अ लिटिल बिट। उसके लिए दिस यू कैन डू विथ मी टुगेदर। ये आई थिंक हमने फर्स्ट डे या सेकेंड डे कभी तो किया था, नॉट द फर्स्ट डे, मोस्टली द सेकेंड डे। ओके, पैरों को आप मिला के रखेंगे। इसको तितली पोजीशन भी कहा जाता है कैजुअली। जब भी आप पैरों को फोल्ड करके तितली में लाएंगे, आपकी पीठ राउंड होगी, हर किसी की राउंड होगी, जैसे मेरी राउंड हो गई है। बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स, आपको पहले पीठ को सीधा करना है। ओके, पीठ को सीधा करके आप हाथ जो है वो टोस के आगे भी रख सकते हैं, आप एंकल्स के पास भी रख सकते हैं,
अगर हाथ आगे रख के आपकी पीठ सीधी नहीं होती है तो हाथ आप इस तरह से अपने हिप्स के पास रख के हाथों का सपोर्ट लेके आप पीठ को सीधा करेंगे। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब पीठ सीधी होगी तभी आप पैरों को भी धीरे धीरे नीचे की ओर, जमीन की ओर आई मीन पुश कर पाएंगे। तो कुछ देर पहले बैठना है। आई सजेस्ट कि सभी लोग मेरे साथ में करिए। हाथ ऐसे पीछे रखिए जैसे मैंने रखे हैं। ओके, चेस्ट को आगे की ओर थोड़ा पुश करके रखिए, स्पाइन एकदम सीधा, और धीरे धीरे अब आपके हाथ तो जमीन पे, तो आपको बिना हाथ लगाए आपके जो दोनों पैर हैं, स्पेशली द थाइज एंड नीज, उनको जमीन की तरफ आपको धीरे धीरे पुश करते जाना है। यू कैन नॉट यूज योर हैंड्स बिकॉज योर हैंड्स आर एल्सवेयर। ओके, तो कीप ऑल योर अटेंशन ऑन योर थाइज, कीप पुशिंग देम टुवर्ड्स द ग्राउंड। वैसे ही बैठे रहिए। आई वुड लाइक टू कम क्लोज एंड चेक, सो आई विल डू दैट। बैठे रहना है आपको। वेरी गुड, वेरी नाइस। आप बैठे रहिए तो आपके इनर थाइज थोड़े से वार्म अप हो जाएंगे फॉर द क्रिया दैट इज टू फॉलो, और तब तक मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। आप प्लीज बैठे रहिए। ओके, इट विल प्रिपेयर योर बॉडी और आप अगली क्रिया जो है वो थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। इट इज कॉल्ड चक्की क्रिया। आप तितली में ही है, जब तक मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ आप तितली में ही रहिए। उसके बाद में आप एक पैर को ओपन करेंगे, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आपको उसको ओपन करना है। लुक एट द टोज आर पॉइंटेड अपवर्ड्स। ओके, वैसे ही होना चाहिए, पैर ऐसे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको हमको एड़ी के ऊपर सीधा रखना है। ओके, दूसरा पैर भी आपको उतना ही वाइड ओपन करना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक पैर ज्यादा खुला है और एक पैर कम खुला है। आपको इक्वली दोनों पैर ओपन करके रखने हैं। इसमें भी बैक थोड़ा राउंड होता है। देयर इज नॉट मच दैट वी कैन डू अबाउट दैट, सो इट इज ओके। यू मेक श्योर दैट योर टोज आर पॉइंटेड अपवर्ड्स। ओके, तभी आपके पैरों का अलाइनमेंट सही होगा। हम हाथों को लॉक करेंगे, इस तरह से आगे की ओर पुश करेंगे। पहले सांस भरेंगे, लेफ्ट की ओर से शुरू करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। दोनों पैर के पंजे सीधे होने चाहिए, कोई भी पैर गिरना नहीं चाहिए। यहीं से गोल घूमते हुए हम दूसरे पैर के पास आएंगे, फिर ऊपर आएंगे। हाथों को फोल्ड नहीं करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे। फिर से एक्सहेल करते हुए आगे, पूरा घूमते हुए दूसरे पैर के पास, फिर सांस भरते हुए ऊपर, थोड़ा सा बैक से पीछे जाएंगे, फिर से रोटेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरा मैट उठ गया, आपका थोड़ा उठ सकता है, इग्नोर इट, कीप डूइंग इट। ओके, चलिए पैरों को खोल दीजिए। आप तितली में हैं, आई एम अज्यूमिंग। ओके, तो पैरों को खोल दीजिए, इक्वली ओपन करिए दोनों तरफ, एक एक करके ओपन करिए, बट दे शुड बोथ बी इक्वली वाइड। कीप योर टोज स्टैंडिंग, योर टोज शुड फेस द सीलिंग, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। आपका पैर कम खुल रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन पैर को आपको सीधा रखना जरूरी है। अब हाथों को आप लॉक करेंगे, उल्टा करके पूरा आगे पुश करेंगे। ओके, धीरे धीरे करके पूरी सांस भरिए। अब लेफ्ट की ओर टर्न करिए, कांधों से सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर की तरफ नीचे झुकिए, मैक्सिमम झुकिए, झुके हुए रहिए। गोल घूमते हुए राइट पैर के पास आइए, घूमते घूमते राइट पैर के पास हाथों को लाइए, फिर सांस भरते हुए ऊपर आइए। हल्का सा पीठ से पीछे जाइए, हाथ ऊपर नहीं जाएंगे, हाथ चेस्ट के आगे ही रहेंगे। रोटेट अगेन, स्टार्ट अगेन। प्लीज काउंट फॉर योरसेल्व्स, आपको 10 बार करना है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। चक्की क्रिया क्यों बोलते हैं अब तक समझ में आ गया होगा। तो पूरा आपको सर्कुलर मूवमेंट करना है। जब आप ऊपर आते हैं तो हाथ आपके सर की तरफ नहीं जाएंगे, चेस्ट के पास ही रहेंगे, बट द एल्बोज विल बी स्ट्रेट। डोंट टेक द हैंड्स अप तन्वी जी, हाथ हर बार ऊपर जाते हैं। एंड लिसन टू मी तन्वी जी, ये आपके शोल्डर्स ऐसे हो गए हैं, रिलैक्स करिए शोल्डर्स को। हाथ ऐसे आगे रखिए, देखिए मेरे हाथ कैसे आगे हैं फेस के पास। यू कांट सी माई फेस राइट, वैसे। अभी टर्न करिए, अभी नीचे जाइए, ऊपर आएंगे, फिर से हाथों को इसी पोजीशन में लाना है। घूमिए, 10 बार घूमना है। पीठ को भी थोड़ा काम करने दीजिए, पैरों को भी थोड़ा काम करने दीजिए। 3, 4, 5 रेपिटेशंस के बाद आप और स्मूथली नीचे झुक पाएंगे।
So be aware of that. That is the advantage of doing more repetitions and kriyas. Yes, very good. I can already see this difference in range. थोड़ा और अच्छे से आप लोग बेंड कर पा रहे हैं. गुड प्रियंका जी, वेरी गुड. पूरा घूमिए और स्टार्ट करिए. सर्कुलर मूवमेंट करना है आपको. आप आगे से सर्कल बना रहे हैं, फिर पीछे से थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है. थोड़ा पीठ से पीछे जाइए प्रियंका जी, पीठ से, और वेरी गुड. अभी टर्न हो जाइए फिर से और फिर से शुरू करिए. अभी थोड़ा और नीचे झुकने की शुरू करिए. हाँ, थोड़ा थोड़ा खुद को चैलेंज करिए सभी लोग. अभी आपका पेट जो है वो थाई पे लगना चाहिए. जब आगे झुकते हैं तो आपका पेट आपके थाई पे लगना चाहिए. प्रियंका जी और आगे जा सकता है आपका हाथ, पैरों के बाहर भी जा सकता है. वेरी गुड. अभी घूमिए पूरा चक्कर. दूसरी तरफ भी अपने आप को पुश करिए और फिर ऊपर आइए. 10 बार करना है. और 10 बार हो जाए तो रुकना नहीं है, फिर उल्टा चक्कर घूमना है. ओके, लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट भी घूमना है आपको. कंप्लीट करिए, उसके बाद शवासन करेंगे. हो गया. फिर दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी आर डूइंग फॉर द डे. ओके, यस. एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है. लंबा करिए स्पाइन को. अभी आपने 10 चक्कर कर लिए. खड़े रह के भी हमने बैक का वार्म अप किया. माजर क्रिया भी आपने की. योर स्पाइन इज रेडी. ओके, जस्ट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. गुड प्रियंका जी, वेरी गुड. पैर सीधे रहे, उसका ध्यान रहे. पैर के पंजे सीधे. वेरी गुड प्रांजल जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ये. वेरी नाइस, वेरी गुड. गुड श्वेता जी, वेरी गुड. पीठ से और थोड़ा आगे पुश करेंगे. यस, वेरी गुड. दोनों तरफ इस तरह से पुश करते जाइए. लेडीज के लिए ये स्पेशली बहुत अच्छा है. इट इज वेरी गुड फॉर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो हमारी ओवरीज के लिए, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छी क्रिया है. एट एवरी एज, इवन एट एवरी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे आसन करवाते हैं. इट इज वेरी बेनिफिशियल. दस 10 हो जाए तो रुक जाए. आप शवासन के लिए लेटे उससे पहले, क्योंकि आपने ये किया है, आपको पैरों में थोड़ा सा स्ट्रेन लग सकता है, तो आप पैरों को मिलाएं और इस तरह पैरों को थपथपा के रिलैक्स करें. ओके, एंड देन यू मे लाई डाउन फॉर शवासन. लाइट ऑफ करनी हो तो कर दें. यू डोंट नीड टू सी मी और सी एनीथिंग ड्यूरिंग शवासन. और चश्मा पहना हो तो शवासन के टाइम प्लीज निकाल दें. आराम से लेट जाएं. पैरों में फासला करें. हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर. आंखें बंद. आती जाती सांसों की ओर ध्यान. अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें. पैरों से शुरुआत करते हुए पैरों की उंगलियां, तलवे, एड़ी, एंकल जॉइंट्स, पिंडली, घुटने, जंघा बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स्ड. आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हैं.
अपना पूरा ध्यान नाभि की ओर ले आए। नाभि को ढीला करते ही आपके शरीर की सारी नस नाड़ियां अपने आप शिथिल हो चुकी हैं। अपने पेट, पीठ, मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को भी ढीला करें। अपने चेस्ट मसल्स और शोल्डर्स को भी रिलैक्स करें। शोल्डर्स के अगल बगल आपके दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, कलाई, कोहनी बिल्कुल ढीली, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपनी गर्दन को भी ढीला छोड़ें। बंद नेत्रों में ही चेहरे की ओर ध्यान ले आए। अपने माथे पर कोई तनाव, कोई शिकन ना रहने दें। आईब्रोज को भी ढीला छोड़ें। नेत्रों की पलकें हल्के से बंद। होठों को, दांतों को और जबान को भी रिलैक्स करें। आपके कानों से सारे तनाव बाहर की ओर निकल चुके हैं। अपना पूरा ध्यान आईब्रोज के बीच में मस्तिष्क की ओर केंद्रित करें। आपका पूरा शरीर मस्तिष्क से लेकर पैरों की उंगलियों तक शांत 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 हो चुका है। अपनी पूर्व अवस्था में वापस लौटने के लिए गहरी लंबी सांस भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें, भरें, छोड़ें। हाथों की उंगलियों में हल्की सी हलचल। दोनों हथेलियां मिलाएं, घर्षण करें। Put your palms together. Rub them to generate warmth. हथेलियां बंद आंखों पर लगाएं। पूरे चेहरे की मसाज। हथेलियां फिर से बंद आंखों पर। धीरे धीरे हथेली हटाएं, आंखें खोलें। दृष्टि चारों ओर रोटेट करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएं, लेफ्ट साइड करवट लें। टर्न टू योर लेफ्ट। लेफ्ट हाथ एकदम सीधा रखिए और लेफ्ट की ओर करवट लेके वहीं पे ठहरे, उठने की जल्दी ना करें। प्रियंका जी लेफ्ट हाथ ऐसे पूरा सीधा पीछे लेके जाइए। लेफ्ट हाथ प्रियंका जी, मेरा हाथ देखिए सीधा है जमीन पे, आप भी सीधा रखिए हाथ जमीन पे। राइट हाथ भी जमीन पे रखें और दोनों पंजों का सहारा लेते हुए धीरे से उठकर बैठ जाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में, स्पाइन टॉल, आंखें बंद। एक बार ओमकार करेंगे बिफोर वी एंड द क्लास। गहरी लंबी सांस भरें। शांत ओमकार के वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस करें।
एक बार गहरी लंबी सांस भरे, छोड़े। जब भी आप तैयार हो बहुत आराम से दोनों आंखें खोलें। Thank you and namaste everybody. I'll see you all tomorrow now.